Hello students, in the previous video we completed this 8th sum. Let's continue with question number 9. So the question reads, at a particular time when the sun's altitude is 30 degrees. So sun's altitude is 30 degrees means the angle of elevation is 30 degrees. Let's say there is a sun here. So sun's altitude is 30 degrees. The length of the shadow of a vertical tower is 45 meters. So let's say this is a tower. Okay, if the sun is here, the shadow will fall here. Okay, so if the sun is here, the shadow falls behind like this. If the tower is here and the sun is here, the shadow will fall here. So this is the shadow. So they have told the shadow of the vertical tower is 45 meters. So shadow is 45 meters. This is the tower. This is the sun here. Okay, and the altitude of the sun means angle of elevation is 30 degrees. Now we need to find the height of the tower. So very easily we can find it. Tan 30 equals to, let's say this is x. So x upon 45. Tan 30 is 1 upon root 3 equals x upon 45. So 45 upon root 3 is x. How to solve this? Rationalize the denominator. So this will become 45 root 3 upon 3. 3 ones are 3 15s are. So your answer is 15 root 3. Okay, 15 root 3. And if you find the value of 15 root 3, you will get the value as 25.98 meters. So the height of the tower is 25.98 meters. Okay, this was the first part of the sum. The second part says the length of the shadow of the same tower. We have to find the length of the shadow of the same tower. So that is, again I will draw the diagram. See, वही tower है. See, the tower is same. Length of the tower, length of the shadow of the same tower. We have to find the length of the shadow when the sun's altitude is 45 degrees and 60 degrees. Means उन्होंने अभी ये एंगल चेंज कर दिया है. अगर एंगल चेंज करेंगे तो शैडो की साइज चेंज होगी. करेक्ट. एंगल चेंज करने से टावर की हाइट चेंज नहीं होती. ओके, टावर की हाइट कितनी थी? 15 रूट 3 है. ओके, इन डेसिमल इट इज दिस मच. ठीक है, तो जो टावर की हाइट है that will remain the same, that is 15 root 3. Take 15 root 3, don't use this decimal value. 15 root 3 अच्छा होगा कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, तो यूज 15 root 3. टावर हाइट इज 15 root 3. करेक्ट. अब उन्होंने पूछा है कि इफ दिस sun's altitude becomes 45 degrees, if sun's altitude becomes 45 degrees, height of the tower we already know is 15 root 3. What will be the length of the shadow? समझ रहा है? सी, फर्स्ट क्वेश्चन में शैडो दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था और टॉवर की हाइट ढूंढनी थी. अब सेकंड पार्ट में, इन द सेकंड पार्ट दे हैव चेंज्ड द एंगल. सो इससे शैडो का लेंथ चेंज हो जाएगा. ठीक है, बट टावर की हाइट वी ऑलरेडी नो बिकॉज वी हैव फाउंड दैट इन द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो अगेन tan 45 विल बी दिस 15 रूट 3 अपॉन द शैडो. ये है ना शैडो. यू कैन गिव इट सम नेम ऑल्सो. ठीक है, एक्स दे सकते हो, वाई दे सकते हो, कुछ भी. ठीक है, सो tan 45 इज 1. सो 1 इज इक्वल्स टू 15 रूट 3 अपॉन द शैडो, लेंथ ऑफ शैडो. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो? 15 रूट 3. ओके, सो कितना मिला शैडो? 15 रूट 3 व्हेन द एंगल इज 45 डिग्रीज. ओके, अब सेकेंड एक और दिया है, बी पार्ट. when the angle is 60 root 3, sorry, when the angle is 60 degrees, हाइट अभी भी 15 रूट 3 है और पूछा है कि शैडो क्या होगा. सो अगेन tan 60 इज 15 रूट 3 अपॉन द शैडो लेंथ. ओके, सो tan 60 वैल्यू इज रूट 3.
15 root 3 upon shadow. So the shadow will come here. Shadow length equals 15 root 3 upon root 3. Okay, so root 3 will cancel. See, that is why I told you to take the value 15 root 3. ये मत लेना डेसिमल, बिकॉज अगर यहाँ पे डेसिमल लेते तो फिर डेसिमल को रूट 3 से डिवाइड करना पड़ता, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. 15 रूट 3 यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, रूट 3 डायरेक्ट कैंसिल हो गया. माई आंसर इज 15 मीटर्स शैडो लेंथ. ओके, सो सेकेंड पार्ट में दो अलग एंगल्स दिए थे, तो दोनों एंगल्स के लिए मैंने सॉल्व किया एंड वी हैव फाउंड द लेंथ ऑफ द शैडो फॉर बोथ. ओके, सॉल्व दिस. ये 15 रूट 3 आंसर है ना, इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 25.98 मीटर्स. ओके, नेक्स्ट. टेंथ सम, लिटिल डिफरेंट सम. थोड़ा कैलकुलेशन भी ज़्यादा है एंड एंगल इज ऑल्सो डिफरेंट. सी, टू वर्टिकल पोल्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड. ओके, सो टू वर्टिकल पोल्स, समझो एक ये पोल ऐसा है और एक ये पोल ऐसा है. ठीक है, दे हैवंट टोल्ड दैट द साइज ऑफ द पोल आर इक्वल. पोल की साइज के बारे में नहीं बताया है. ठीक है, तो वी कैन नॉट कंसिडर देम इक्वल. समझो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, वॉट एवर इट इज. सो दीज आर द टू पोल्स. A 30-meter long ladder is placed between the two poles. So एक ladder है, let's say this is a ladder, तो इस ladder को poles के बीच में रखा है. When the ladder rests against one pole, so मुझे इस ladder को अगर मैंने ऐसे रेस्ट करवाया एक पोल पे, so ये रेस्ट हो गई एक पोल पे. It makes an angle 32 degrees 24 minutes with the pole. ओके, सो समझो यहाँ पे ये पॉइंट पे लैडर था. ठीक है, उसको मैंने एक पोल पे ऐसे सुला दिया, रेस्ट अगेंस्ट वन पोल. सो इट मेक्स एन एंगल 32 डिग्रीज 24 मिनट्स विद द पोल. विद द पोल बोला है, मतलब ये लैडर ने पोल के साथ क्या एंगल बनाया है, 32 डिग्रीज 24 मिनट्स. ओके, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है. ठीक है, व्हेन इट इज टर्न्ड अगेंस्ट अनदर पोल, मतलब ये ऐसे था, अब इसको यहाँ से घुमा के ये वाले पोल पे रेस्ट कर दिया. ठीक है, यही सेम लैडर को इधर से घुमा के इधर रेस्ट कर दिया अभी. ठीक है, सो नाउ द लैडर इज केप्ट लाइक दिस. ठीक है, ये है हमारा लैडर. इट मेक्स एन एंगल 32 डिग्रीज 24 मिनट्स विद द रोड. सो इस बार इस लैडर ने रोड के साथ, ये है रोड. ठीक है, क्या एंगल बनाया है, तो लैडर और रोड कहाँ मीट हो रहे हैं, यहाँ पे. सो उसने क्या एंगल बनाया, 32 डिग्रीज 24 मिनट्स. ओके, सो इन द टेक्स्ट बुक यू कैन अंडरलाइन दिस, दैट फर्स्ट लैडर मेक एन एंगल विद द पोल एंड सेकेंड टाइम लैडर मेड एन एंगल विद द रोड. दैट मीन्स दिस लाइन. ओके, सो एक एंगल इधर आएगा और एक एंगल यहाँ आएगा. ओके, एंड द लैडर इज 30 मीटर्स लॉन्ग. सो मीन्स लैडर की साइज है 30 मीटर्स. What do we have to find? We have to find the width of the road. That means AB. ठीक है, इसको C ले लो. We have to find the width of the road. तो क्या करेंगे, पहले AC ढूंढेंगे, फिर BC ढूंढेंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड. सो पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है, नाउ इन दिस ट्राइंगल दिस इज द एंगल. ओके, यू हैव टू फाइंड AC, मतलब ये बेस हुआ एडजेसेंट और हाइपो दिया हुआ है. सो एडजेसेंट, बेस, बेस और हाइपो. बेस और हाइपो से कौन सा फॉर्मूला बनता है, बेस एंड हाइपो. बेस एंड हाइपो से कौन सा फॉर्मूला बनता है, कॉस. कॉस का रेशियो बनता है, तो मुझे यहाँ पे कॉस का रेशियो यूज करना पड़ेगा. तो कॉस ऑफ दिस एंगल, एंगल क्या है 32 डिग्रीज 24 मिनट्स इक्वल्स टू, ये क्या है AC अपॉन हाइपो क्या है 30. ओके, नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस. तो आई नीड द वैल्यू ऑफ cos 32 डिग्रीज 24 मिनट्स.
Okay, so see, come to this list of natural cosines. Okay, natural cosines में ये नेचुरल कोसाइंस में आए. अब इसमें क्या चाहिए हमें, 32 डिग्रीज. सो 32 डिग्रीज कहाँ मिलेगा, हियर इज 32 डिग्रीज, ये है 32 डिग्रीज. ठीक है, और 24 मिनट्स. सो 32 डिग्रीज तो मिल गया. नाउ यू सी हियर 24 मिनट्स का है, 0, 6, 12, 18, 24, ये वाला. सो ये वाले कॉलम में मुझे देखना है कि 32 मिनट्स के लिए क्या वैल्यू है. 32 मिनट्स इन दिस कॉलम. सो क्या मिल रहा है, 8443. समझ रहा है, ये वाला कॉलम है 24 मिनट्स का और ये है 32 डिग्रीज. सो आई गॉट द वैल्यू 8443. ओके, बट ये 8443 है ना. अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर को अगर देखोगे ना, इट इज 0.8480. सो ये सब नंबर जो है ना, ये सब पॉइंट के बाद है. सो दिस इज ऑल्सो 0.8443. ओके, ऑल दीज नंबर्स आर 0.9449, 0.9432, 0.9426, सब कुछ पॉइंट है आगे. ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट नंबर के आगे डेसिमल देते हैं और बाकी कॉलम्स में डेसिमल नहीं लिखते, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड दैट ऑल ऑफ देम आर पॉइंट सो एंड सो नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 8443 मीन्स द आंसर इज 0.8443. ओके, सो दिस इज 0.8443. ओके, इक्वल्स AC अपॉन 30. सो व्हाट विल AC बी, ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.8443 इंटू 30. ओके, in this triangle, see, ये है एंगल. I have to find BC and I know the value of hypo. So BC क्या है, ऑपोजिट है, इस एंगल के ऑपोजिट है. सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो मीन्स, ऑपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, द फॉर्मूला इज साइन. सो इस ट्राइंगल में आई विल टेक साइन. साइन 32 डिग्रीज 24 मिनट्स इज ऑपोजिट, दैट इज BC अपॉन हाइपो 30. अब इसकी वैल्यू भी आप फाइंड करो, 32 डिग्रीज 24 मिनट्स इन नेचुरल साइंस. You will get 0.5358. खुद से फाइंड करो ये वैल्यू. You should get this value. $30 will get multiplied. Okay, find both these values. Then the width. The question was, find the distance between the poles, width of the road. So the width of the road is adding both these values, AC plus BC. Okay, do this, complete the sum. Pause the video and complete it. Next, question number 11. Question number 11 says that two climbers are at points A and B on a vertical cliff. Vertical cliff मतलब समझो ये एक cliff है ऐसा, ठीक है, cliff, और climbers इस पे चढ़ रहे हैं. ठीक है, two climbers A and B. To an observer C 40 meters from the foot of the cliff. So ये cliff है, ठीक है, इसके foot से 40 meters दूर. So 40 meters दूर एक observer है C. Okay, on the level ground. A is at an elevation of 48 degrees and B at 57 degrees. मतलब C जो है ना, वो यहाँ से A और B को देख रहा है. ठीक है, तो C ने A को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 48 डिग्रीज. ठीक है, और C ने ये A को देखा था. ठीक है, अब C ने B को देखा. सो B के लिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 57 डिग्रीज.
करेक्ट, समझ रहा है? ये ए को देखा ऐसे, ये दोनों, ये क्लिफ है, तो एक ए यहाँ तक पहुँचा है क्लिफ में और बी यहाँ तक बोला, ऐसे चढ़ते हैं ना क्लिफ को, ठीक है? क्लिफ मतलब क्या होता है? ये ऐसे माउंटेन का ये क्लिफ होता है, ठीक है? तो इफ़ यू आर क्लाइंबिंग द क्लिफ, यू कैन बी हियर, यू कैन बी हियर, यू कैन बी हियर, यू आर क्लाइंबिंग द क्लिफ, ओके? सो वी अज्यूम, तो हमें नहीं पता था कि ए ऊपर है कि बी नीचे है, कौन ऊपर नीचे है वो नहीं पता था, बट हमने जब एंगल्स देखा तो ए का एलिवेशन था 48 डिग्रीज और बी का था 57 डिग्रीज, दैट मीन्स डेफिनेटली बी इज अबव ए, ओके? सो सी के लिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाइंबर्स, दैट मीन्स ए बी, ये ढूंढना है। ऐसे सेम सम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, सेम सम था ऐसा, ठीक है? अभी हमें ए बी फाइंड करना है, तो व्हाट विल आई डू? फर्स्ट आई विल टेक द स्मॉलर ट्राइंगल and I'll find this AD, ठीक है? Then I'll take the bigger triangle and I'll find BD, okay? So see, I'll take in triangle ADC, the smaller triangle, I'm talking about the smaller triangle where the angle is 48 degrees, so I will have tan 48 equals, tan क्या होगा? opposite, that is AD अपॉन बेस, दैट इज 40, ठीक है? एंड जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, दिस बिगर ट्राइंगल वेयर द एंगल इज 57 डिग्रीज, ओके? सो हियर आई विल हैव tan 57 डिग्रीज इज द 57 डिग्रीज के लिए ऑपोजिट क्या होगा? बी डी, सो बी डी अपॉन बेस विल बी 40, ठीक है? इन दोनों की वैल्यूज टेबल में पीछे फाइंड करनी होगी, फाइंड द वैल्यूज, find the values on your own. I have checked the values and I got these answers. You also cross check and see whether it is right. Now I will multiply this 40 with 1.1106, so I will get 44.424 as AD, okay? And then I will multiply it with 1.5399, okay? So this multiplication I will get the answer as 61.596, okay? So ये मिला BD और ये है AD. Now what do I have to find? I have to find AB. सो ए बी क्या होगा? फुल बी डी माइनस ए डी, पूरे बी डी में से ए डी माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट ए बी, तो आई विल गेट द आंसर एज 17.172 meters. Okay, you can round off to 2 digits also, 17.17 meters. This is my answer, the distance between the climbers. The next two questions are easy. 12-13. A man stands 9 meters away from a flagpole. Okay. Now यहाँ पे जो एक छोटी सी न्यू चीज़ आप सीखोगे, ओके? दैट देयर इज अ फ्लैग पोल. फ्लैग पोल मीन्स ऐसे फ्लैग लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? फ्लैग पोल. एंड अ मैन स्टैंड्स 9 meters away from the flagpole. Okay. He observes the angle of elevation of the top of the pole to be 28 degrees. So समझो मैं यहाँ पे पहले एक छोटा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? समझो ये फ्लैग पोल है, ठीक है? अभी तक जो हमने क्वेश्चन रीड किया, व्हाट अ मैन इज स्टैंडिंग 9 meters अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल, ओके? ऐसा उन्होंने बोला नहीं है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लैग पोल. स्टिल आई एम ड्राइंग दिस. He observes the angle of elevation of the top of the flagpole to be 28 degrees and the angle of depression
of the bottom of the pole at 13 degrees. मतलब उस आदमी को, अगर मैंने ये ऐसा डायग्राम बनाया, उस आदमी को फ्लैग पोल का टॉप भी दिख रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन बना 28, एंड सेम पॉइंट से ही कैन सी द बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल ऑल्सो, बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल. बट यहाँ पे मेरे डायग्राम में तो फ्लैग पोल जहाँ आदमी खड़ा है और जहाँ बॉटम है दोनों सेम है. इफ अ पर्सन इज एबल टू सी द टॉप, he is making angle of elevation, and he is seeing the bottom also and making some angle of depression. That means that person is standing between the height. See, वो पर्सन कहीं ना कहीं इस पोल के यहाँ पे ऊपर बीच में कहीं पे तो है, ठीक है. इसीलिए कितना ऊपर है वो नहीं पता हमें, ओके, बट वो बीच में है. क्यों बीच में है? बिकॉज जब वो बीच में होगा तभी इट इज़ पॉसिबल है दैट फ्रॉम दिस पॉइंट he will see the top of the flagpole with some angle of elevation, and he will see the bottom of the flagpole with some depression, some angle of depression. समझ रहा है क्वेश्चन? सी, पहले मैंने ऐसे बनाया था बट आई गॉट माई मिस्टेक. क्या मिस्टेक थी? दैट एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है. ओके, अगर दोनों बन रहा है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज नॉट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे खड़े हो तो यू कैन ओनली मेक एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, यू कैन नॉट मेक डिप्रेशन. डिप्रेशन के लिए यू हैव टू बी अबव द ग्राउंड. अगर ज़मीन से ऊपर होंगे ऐसे तभी ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पाओगे ना. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब आप ज़मीन से ऊपर हो. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ही इज़ मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑल्सो एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो. दैट मीन्स ही इज स्टैंडिंग समवेयर बिटवीन द पोल. ओके, एंड इट वॉज टोल्ड दैट ही इज स्टैंडिंग 9 मीटर्स अवे. सो वो 9 मीटर्स दूर है. ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल. ये पोल की पूरी हाइट क्या है? ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बार ये ट्राइंगल ले लेंगे और ये वाला डिस्टेंस ढूंढ लेंगे, फिर ये ट्राइंगल लेंगे नीचे वाला, एंड विल फाइंड दिस डिस्टेंस एंड देन विल ऐड बोथ ऑफ देम. ओके, इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितने हाइट पे था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, सो let's first solve the bottom triangle, this triangle here. So I will take tan 13 degrees, its opposite is BC and the base is 9 meters. Okay, so tan 13 की value I'll have to find from the table. Tan 13, that is 0.2309. Okay, similarly I'll solve for this triangle also. 28 is opposite is this perpendicular CD and base is again 9. So what is the value? 28, 0.8829 equals to CD upon 9. Okay, so this 9 will go here. 9 into 0.8829 equals CD. Okay, and this 9 will go here. 9 into 0.2309 equals BC. Find both the values and then add. Height of the pole is BC plus CD, this full. So BC plus CD. So whatever answer you get here and here, add, multiply them and then add both the answers. That will be your final answer. Understood? Thirteenth question. From a top of a cliff 92 meter high, so a cliff के top से, from a top of a cliff which is 92 meters high, cliff के ऊपर से देख रहे हैं, the angle of depression of a buoy, see, buoy means boat, ठीक है, तो boat ही है वो. So the angle of depression, so cliff के ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पे, let's say there is a boat here. Okay, so from the top of a cliff, this is the straight line. Okay, the angle of depression will be like this. So ये angle of depression ऐसा होता है,
बोट को देख रहे हैं. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज 20 degrees. Okay, angle of depression, always angle is calculated from the straight line. Okay, so this is 20 degrees. Find the distance of the boy from the foot of the cliff. Okay, so distance of the boy, that is the boat, from the foot of the cliff. So ये कितना दूर है, ठीक है, ये जो बॉय है वो कितना दूर है. Boy, it's boy. So this distance I have to find. ठीक है. Now see, this is 20 degrees, so this will also be 20 degrees. Okay, and this is 90 here. Now I have to find the value of x. So let's take tan 20 degrees. This is opposite, perpendicular. 92 upon base is x, adjacent, opposite upon adjacent. So अब ये कैसे सॉल्व होगा? tan, अब देखो यहाँ पे वापस प्रॉब्लम आएगी. ये x को यहाँ पे लेंगे, tan 20 को नीचे. So यहाँ पे tan की वैल्यू नीचे आ जाएगी. So the calculation will become difficult. ये वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है. tan की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई, should not come in the denominator. तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. तो क्या करना है इसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ये 20 है, दिस इज 90, ये 20 है, तो व्हाट विल दिस एंगल बी? दिस एंगल बी 70 डिग्रीज. टोटल 90 होता है इनका, बिकॉज ये एक 90 हो गया और बाकी बचे हुए दो एंगल्स मिलके 90 होते हैं. सो दिस विल बी 70. अब ये 70 से सॉल्व करेंगे सम को. ओके, 70 से सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम राइट. ओके, सो आई विल लीव दिस. 70 से tan 70 इक्वल्स, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑपोजिट, 70 के सामने x अपॉन दिस विल बी द एडजेसेंट और द बेस. अब tan 70 की वैल्यू हमें निकालनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 70? 8.36, no wait, 70 is 2.7475. So this is 2.7475 equals x upon 92. So 92 will go here. 2.7475 into 92 is x. Multiply this, you will get the answer. And they have told in the question to the nearest meter. ये पढ़ना मत भूलना, nearest meter बोला है, means we have to round off the question answer. Sorry, whatever value you get in the answer, 2.7475 into 92, you will get the answer as 252.77 meters. This will be the answer. So you will round it off. You will round it off to the nearest integer, that is 253 meters हो जाएगा आंसर. Understood? The answer is 253 meters. Okay. With this, we complete the first exercise. Let's start the second exercise. Let's start the second exercise. Pause the video and you can copy the sum. Now, there is nothing new in this exercise. The concepts remain the same. Only the calculation part will increase now. Okay, the level of difficulty of the sums will change. So, the first question, the diagram is already given.
Here the unknown value is x, d. The most important part here is that they have given this side DC, ये जो आधा side है ना DC, that is 30 meters. Okay, remember always I have told you that trigonometric ratios are applicable only in right angle triangles. Okay, so यहाँ पे right angle triangles कितने हैं इस फिगर में? एक ये right angle triangle है, ये वाला. ओके और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ये फुल बड़ा वाला ट्रायंगल, ये फुल ट्रायंगल. ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस इज ऑफ नो यूज. ठीक है, ये कभी काम नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो राइट एंगल हियर. ठीक है, काम क्या आएगा? या तो ये वाला ट्रायंगल ABC, या तो फुल ABD, पूरा ABD. ओके, जिसमें ये एंगल 30 डिग्रीज काउंट होगा. ठीक है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्रीज काउंट होगा. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन द फिगर गिवन बिलो, okay, this is just values told. ठीक है, we have to find x. so बोला है x find करो. ठीक है, this BC is also unknown. okay, so I'll write here let BC be y. so BC को y ले लेते हैं. so वेरिएबल होगा तो अच्छा होगा सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं. now in this triangle ABC you can see angle is 45, but AB is also not given, BC is also not given. okay, and AC is also not given. एक भी साइड नहीं दिया है. ठीक है, तो अब क्या करें? still we will start solving it. so in triangle ABC we will take tan 45 degrees. so tan 45 will be this AB upon BC, correct? so tan 45 is AB upon BC. tan 45 होता है 1. ठीक है, AB is x and BC is y. ठीक है, सो ये y यहाँ पे जाएगा, y is equals to x. y equals to x मिल गया. ठीक है, y equals to x मिला. अब ये हो गया. मैंने फर्स्ट दिस स्मॉलर, आई हैव सॉल्व द स्मॉलर ट्राइंगल. दिस इज डन. नाउ आई विल टेक द बिगर ट्राइंगल. इन ऑल द सम्स दिस इज द सेम पैटर्न you will follow. okay, you will solve the small triangle first and then you will solve the big triangle and then you will substitute. This is the pattern. okay, so now let's take the big triangle. okay, now forget this angle 45, focus of this angle 30 degrees, this bigger triangle. so in triangle ABD, okay, tan 30, so 30 के सामने opposite क्या है? AB. okay, so that is AB upon 30 के लिए this big triangle में what is the adjacent side? this is the adjacent side BD. tan 30 is 1 upon root 3. AB is x and BD is 30. this is 30 and this is y, so this is 30 plus y. 30y मत लिख देना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों ऐड होंगे. करेक्ट, so this is 30 plus y. okay, but I know that y is equals to x, so I can, in the place of y I can substitute x. okay, now I will solve this. ठीक है, अब ये सॉल्विंग थोड़ा सा मुश्किल है. so कैसे है? कुछ नया है, मतलब this root 3 will go here, so I will have root 3x. okay, so यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है. let's bring it on the same sides. so root 3x minus x. okay, now take x common. ये root 3x है और ये x है, तो take x common, you will get root 3 minus 1. from these two terms I have taken x common. now this root 3 minus 1 will go in the denominator. ठीक है, x को मैंने सब्जेक्ट बनाया. इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक x सब्जेक्ट बिकॉज x ही तो अननोन वैल्यू है जो हमें फाइंड करना है. ठीक है, now how to solve this? this will be solved by rationalization. so 30 upon root 3 minus 1 कैसे rationalize करते हैं? by multiplying with opposite sign. okay, so 30 root 3 plus 1 upon denominator में root 3 minus 1 root 3 plus 1 will be a square minus b square. okay, don't open this brackets, keep it as it is. so root 3 square is 3 minus 1. okay, that will become 2 in the denominator.
So 2 1s are 2 15s are. You will have 15 root 3 plus 1. ठीक है. Now open the brackets. 15 root 3 plus 15. So what is 15 root 3? Root 3 means 1.732. Okay. So 15 into 1.732 will give you 25.98 plus 15. So your answer will become 40.98. क्या मिला x? 40.98 मीटर्स. समझ रहा है? ये कैलकुलेशन का जो पार्ट था ना, इसको you can just rewind for 5-10 minutes and watch this calculation part once again, because अभी जितने भी सम्स आएंगे सब में ऐसा ही कैलकुलेशन होगा. ओके, सो अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ सम्स. ऐसे क्वेश्चन आया, अगर ये डायग्राम आया तो क्या करेंगे? इवन इफ टू वैल्यूज आर अननोन, वी विल अप्लाई द tan trigonometric ratio and we'll get some relation between these two sides. Then I'll apply tan in full triangle. Then I will resubstitute and I'll solve and I get the answer. Okay, copy. Let's do one more sum. Question number 2. The question is same, but the words are important here. Okay, because in this question the diagram was already given, so you did not have to think anything. But here the diagram is not given, so you have to make the diagram and understand the statement. See, find the height of a tree when it is found that, so you have to find the height of a tree. Let's say the tree height. Okay, so this is a tree. It is found that on walking away from it 20 meters, 20 meters दूर जाएंगे बिल्डिंग से. It is found that on walking away from it 20 meters in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 60 to 30 degrees. ये दो नंबर्स है क्वेश्चन में. ठीक है, क्या बोला है कि 20 मीटर्स दूर जाने से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू 30 डिग्रीज. मतलब वो जहाँ पे पहले खड़ा था वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज था, अब वो वहाँ से दूर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्रीज. मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है सम को यहाँ से स्टार्ट करना है. वो यहीं पे कहीं, वो दूर ऑलरेडी दूर था, वो दूर था, इसीलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 60 डिग्रीज. ओके, एंड फिर उसने क्या बोला कि ऑन वॉकिंग 20 मीटर्स अवे, मतलब वो ट्री के तरफ नहीं गया, वो ट्री से दूर गया 20 मीटर्स. सो ऑन वॉकिंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 टू, जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्रीज. समझ रहा है सम? ओके, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 20 मत समझना, नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग. क्योंकि 20 मीटर्स किस चीज़ का डिस्टेंस है? जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था वहाँ से जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज हुआ. ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज था, इसका मतलब ही वॉज ऑलरेडी अवे फ्रॉम द ट्री. ठीक है, तो ऑलवेज अभी जैसे आपको, आप बार बार व्हेन यू विल रीड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ डायग्राम इज मेड. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम एक्चुअली, बट यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. So understand once again that on walking 20 meters away from the top, so this is 20 meters. So 20 meters दूर गया वो, किससे? ट्री से. पहले वो यहाँ था, अब वो और 20 meters दूर गया, जिससे the angle of elevation changes from 60 to 30 degrees. Okay, you understand ना? See, अब logically सोचो that आप किसी भी चीज़ टावर के अगर नज़दीक जाओगे तो your elevation will increase. Okay, because ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, जितना नज़दीक जाओगे उतना ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा. ठीक है, जितना दूर जाओगे टावर से उतना आपको नीचे देखना पड़ेगा. नीचे मतलब उतना कम
एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर दो एंगल्स है, द बिगर एंगल विल बी नियर द टावर. ओके, द बिगर एंगल विल बी नियर द टावर. ठीक है. नाउ व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. मुझे ये फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट्स टेक दिस एज x and this as y. So again, tan, I'll solve the smaller triangle first. Tan 60 is, this is the opposite perpendicular and this is the base adjacent. Okay, now what is tan 60? Tan 60 is root 3. So ये y यहाँ पे जाएगा. I will get y root 3 is x. Correct? Now I'll apply the tan 30 in the bigger triangle. Tan 30 degree will be, opposite is x upon base is 20 plus y. 20 plus y. Okay, and what is tan 30? Tan 30 is 1 upon root 3. Okay, now I know that x is y root 3. So यहाँ पे x की जगह पे I'll put y root 3. I'll substitute this here. Okay, so you can name this. This is 1. Put from equation 1. From equation 1, 1 upon root 3 equals, x की जगह पे मैं पुट करूँगा y root 3 upon 20 plus y. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा 20 plus y equals, this root 3 into root 3 will become 3. So this will be 3y. 20 is equals to 3y minus y. 2y is 20, y is 10. ठीक है, y 10 मिला, बट y ढूंढना नहीं था, हमें ढूंढना क्या है, x चाहिए था. ठीक है, सो अगर y मिल गया 10, सो व्हाट विल बी x? x इज y रूट 3. सो दैट इज x इज 10 इंटू रूट 3. ओके, एंड 10 इंटू रूट 3 इज 17.32 meters. So height of the tree is, write the statement, height of the tree is 17.32 meters. Understood how to do the sum, these type of sums? First apply tan here, then tan in the full triangle. Whatever relation you get between x and y here, that is used in the second part. Copy it down. Now the third question, you will do it on your own. Okay, so the third question, I will draw the diagram here. Keep the question in front of you. Find the height of a building. So there is a building, this is a building. Find the height of the building. So let's say x above. When it is found that on walking towards it 40 meters in the horizontal line through its base, the angle of elevation of the top changes from 30 to 45. So angle कैसे change हुआ? 30 degrees से 45 degrees हुआ. And he is walking 40 meters towards the tower. Okay, मतलब पहले एंगल 30 डिग्रीज था जहाँ पे वो खड़ा था, और फिर वो 40 मीटर्स चला तो एंगल कितना हो गया? 45 डिग्रीज. ओके, सो मीन्स वो पहले दूर था. ठीक है, पहले वो दूर था, सो एंगल वॉज 30 डिग्रीज. नाउ ही वॉक्स टूवर्ड्स द टावर. कितना चला? 40 मीटर्स चला. एंड नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 45 डिग्रीज. समझ रहा है? पिछले क्वेश्चन में 60 से 30 हुआ था, उल्टा, बिकॉज ही वॉज गोइंग अवे फ्रॉम द टावर, तो एंगल कम हुआ. अब यहाँ पे ही इज गोइंग टूवर्ड्स द टावर, सो एंगल बढ़ गया. बस ये सिर्फ लिखने का तरीका है, आपको एग्जाम में सीधा दिखना चाहिए 30 है 45 है, सो 45 पहले आएगा 30 बाद में आएगा, बिकॉज बिगर एंगल इज ऑलवेज नियर द बिल्डिंग. ओके, दिस डिस्टेंस यू डोंट नो, यूज द सेम मेथड. ओके, सेम, फर्स्ट अप्लाई tan here, then apply tan in the full triangle, and then find the value of x. Okay, this is homework for you. Solve it now. I'm ending today's lecture here. Solve this sum right now
and check your answer. Okay, that's it for today. Thank you.